की छद आस, हो सबना की रेणका तो आओ हमारे पास। धूड़ी बांडा तो रविदास जी ने जब अमर दिता उस राजे नूं, राजे ने इदां करके डोल लिया, उहदियां बाहां दे विचों सुक गया जाके पानी, दाग जे लग गए। हुण इन्हां दा समकाली ही भगत कबीर है, क्योंकि सारे कुछ भगत रामानंद जी दे समय होए, ये सारे उन्हां दे सेवक है। कबीर साहब जुलाहे दा काम करदे है, ते कबीर साहब जिहड़े सन उन्हां दे घरे कपड़े नूं रंगण दा, कपड़े दा रंग लाउण दा और खद्दर बुणन दा काम चलदा जुलाहे दा। ते राजे ने अपने नौकरां नूं कहा भी, राजा नौकरां नूं कहंदा भी इदां करो, कबीर दे घर जाओ। महाराज कबीर दे घरे किवें जाना है? कहंदे आ मेरे चोले नूं पता नहीं काहदा रंग लग गया, दसदा नहींगा, चोरी कीती सी ना। कहंदा रंग जा लगे, दाग जे लगे, लवा के लियाओ, जुलाहा राह दिंदा। कबीर साहब कोले पहुँच गए, चोला लैके उहदे नौकर कहंदे राज साहब दा चोला है ते इस नूं आ पता नहीं दाग जे काहदे लगे आ, ला के दिओ। कहंदे ला दिन्ने आ। और कबीर साहब ने अपनी बच्ची नूं आवाज़ मारी, कहंदे पुत कमाली आ देख तां बांह ते की लगे है। लाल रंग दे दाग चमड़े दे भी हो सकते हैं, लहू दे भी हो सकते हैं, चाह दे भी हो सकते हैं, हल्दी दे भी हो सकते हैं, दाग पता नहीं काहदे है, ला इन्हां नूं। और बीबी ने लाने शुरू किए। हुण ओह तां पक्का रंग सीगा, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਰੰਗ ਕਾਟਾਂ ਨਾਲ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਥੇ। ਬੀਬੀ ਕਮਾਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੁਗਤੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਜੇ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਸਾਧਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਚਨ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੂਟਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਕਮਾਈ ਹਰੋ ਨਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਝਾੜੂ ਦੀ। ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 60 65 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਧੂਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਮਾਈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ। ख्याल आया, बहुत सेवा की माई ने। कहते माता हरो हरो भरो। वो भी समझ गई रमज नूं, ये कहते तेरे बच्चा होवेगा। वो कहते नहीं महाराज, बस हुण तां तुहाडे चरनां नाल जुड़ के लंघ जे। कहते नहीं हरो भरो। कहते नहीं महाराज, बस हुण तां समां थोड़ा रह गया, पता नहीं कदों सद्दा आ जे। 2 वारी जवाब देता, तीजी बार उन्होंने धूने विच एक बोड़ की लकड़ लगी हुई सी, मच रही सी जिहड़ी, ਉਹ ਲੱਕੜ ਚੱਕੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮੱਚਦਾ ਪਾਸਾ ਧਰਤੀ 'ਚ ਠੋਕਿਆ, ਖੁੱਭ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਹਰੋ ਭਰੋ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਲੱਕੜ ਬੋੜ ਦੀ ਹਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮ ਬੂਟਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਬੋੜ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਮਾਲੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੋਲਾ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੌੜੇ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਜੀਭ ਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦਾ। ਬੀਬੀ ਕਮਾਲੀ ਨੇ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾਗ ਨੂੰ ਚੱਬਿਆ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਥਾ ਦਾਗ ਕੁੜਤੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਬਚਨ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਕਮਾਲੀ ਨੇ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਚੱਬੀਆਂ ਲੈ ਗਏ, ਚੱਲ ਚੱਬ ਕੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਚੱਬ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲਾਹ ਤੇ ਕੁੜਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਮਾਲੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਮਾਲੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ
ਤੇ ਕਮਾਲੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੁਪਤੋ ਗੁਪਤੀ ਹੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਕਾ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਲੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਾਲੀ ਵਿਆਹੁਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਵਰ ਦੇਖੋ ਹਨ ਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਭਗਤ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਚੋਰ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਦਾ ਖੜਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਸਕਰ ਸੋਏ ਜੇ ਤਾਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੜਕਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੜਕਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜੁਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੜਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੋਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਉਹਦੇ। ਭੱਜ ਕੇ ਬਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਘਰ ਸੀ, ਗੇਟ ਗੂਟ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ? ਐਦਾਂ ਕਰ, ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਮਾਲੀ ਪਈ ਆ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ, ਕਮਰੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜਾ। ਇੰਨੇ ਮਗਰ ਆ ਗਏ, ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਦੱਬਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਚੋਰ ਬੜੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਇੱਕੇ ਮੇਰੀ ਲੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੁੰ ਤੇ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਪਏ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਈ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਵਾਈ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਵਾਈ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਦਾਂ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ पाती अपत ताकी नहीं लाज, तब जानोगे जब उगड़े गो पाज। हम अपते अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई। कोई गल नहीं, फिर दुनिया पुट्ठा सीधा बोलती है। कबीर साहब जी कहने मैं दसता मेरा जवाई है। पिंड वाले तो मुड़ गए, तो चोर भी जान लगे। कबीर साहब कहने खड़ जा, इनू नाल लै जा, कमाली नूं तेरी घर वाली हुई आ। को सतनाम सी। पिंड वाले दसना हुंदा, दसता मैं तू मेरा जवाई है। कहना नहीं महाराज तुसीं मेरी जान बचाई। कहते जान नहीं बचाई, मुख चों निकलिया बचन पूरा हुंदा है। इक्को वारी जवाई नूं जवाई कहा जांदा किसी बच्चे नूं। को सतनाम सी। तैनूं मैं जवाई मन्निया, पिंड वाले सामने लै जा। कहना फिर मैं जी विआह के लै जाऊँगा जी, एडी गल है। तां फिर वो बीबी नूं विआह के लै गया, कमाली नूं मुल्तान लिआया। कोई फकीर घुमदा घुमाउंदा इन्हां दर ते भिखिया मंगण आ गया। उन्हें आवाज़ मारी भिक्षा पाओ। कमाली दी सस कहनी बाबा घरे है नहीं कोई। कमाली कहनी हैगे आ, आउणी आ मैं। कमाली ने लिया के आटे का या दाणियां दा थाल वो भिक्षा पाती। फकीर कहना बेटा तू कदों कदी जम्मी आ? कहनी जी हो गए कोई 20 साल। सस दा कंन इधर हो गया भी की गल्लां करदे आ। कहनी मैं 20 साल दी आ। अच्छा ते पुत सज्जरी खाने हो बेही खाने हो? कहन लगी जी हजे तो बेही खाने आ। वो हैरान होई जांदी है, उसदी सस भी ये करी की जांदी है। रोज़ ताज़ियां रोटियां पकाउने आ, ये कहंदी बेहा खाने आ। कहो सतनाम सी। ते बेटा तेरा पति कदों जम्मिया? कहने जी वो 2 साल का जम्मिया। कहो सतनाम सी। ये होर भी हैरानी वाली गल हो गई। तो तेरी सस कहती जी वो तो हले जम्मी नहीं। वो हैरान हो गई सस भी, ये किहो जिहियां गल्लां करदी है कुड़ी, कित्थों विआह के लिआया इहनूं। कबीर साहब किते मिलण वास्ते आए, सस ने सारी गल कीती भी कुड़ी नूं की सिखाया तुसीं? भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। भगतां दीयां रमजां भगती समझदे आ।
तो कहन लगी एक दिन साध आ गया तो इदां गल्लां होईयां। वो कहंदा बेटा तू कदों कदी जम्मी है? कहनी मैं 20 साल की, हुण ये हैगी 30-35 साल की, ते अपने आप नूं 20 साल की काकी दसदी है। तो जे उन्हें पूछा तेरे घर वाला जम्मे है? कहंदी वो 2 साल का। मैनू कहंदी सस तां हले जम्मी नहीं। कहो सतनाम सी। नाले कहंदी बेइज्जती करदी है साडे घर दी, बेहा खाने आ। कबीर साहब कहंदे भगवाने गल ये आ, बेहा खान का मतलब पिछले किए हुए कर्मां नूं भोग रहे हैं, गाहां चंगे कर्म नहीं करते। कहो सतनाम श्री। ये बेहा खाना ही आ, जिहड़े सुख भोग रहे हैं आपां, ये पहलां दा बीजिया खा रहे हैं, नवां तां हाले बीजिया नहीं आपां। ते होर वो जम्मण वाली की गल है? कहन लगे वो है नाम लेना, गुरु वाले बनना। ये 20 साल हो गए इनू जदों गुरु वाली बन गई, कुदरत ने कृपा की, भावें उम्र 30-32 साल की है इसकी। उस तो बाद 2 साल हो गए विआही नूं, तेरा मुंडा भी चोरी छड्ड के सीधे रस्ते पै गया, वो भी नाम जपन लग पिया। कहो सतनाम श्री। ते तू हजे इस पासे चली नहीं, इस करके ये रमजां हुंदियां। तो इस करके गुरु प्यारिओ मैं गल कर रहा सीगा कि जिस वेले भगत रविदास जी ने उस राजे नूं चोली दिती ते वो किरपा कमाली ते हो गई, ते कमाली दी गल भी ये गुझी नहीं रहिंदी। फिर कोई किरपा हो जाए ना, ये गल गुझी नहीं रहिंदी, प्रगट हो जाती है। कमाली दे बारे भी गल्लां होण लगियां भी भगत जी दी लड़की भी बड़ी ज्ञानवान है बई। ते राजे नूं पता लग्या भी जदों वो चोले तो वो दाग लाहे सी ते ओदा असर भगत कबीर दी लड़की ते हो गया। ते मैथों किड्डी गलती हुई, मैं नक्शन मन गया, वो चीज़ नूं चंगी नहीं समझिया ते मैं डोल दिता। ते दोबारा फिर वो जांदा है कबीर अपने भगत रविदास जी दे कोल, कहने महाराज कृपा करके अमृत दिओ। रविदास जी ने पूछ लिया दोबारा किहड़ा अमृत? महाराज वो जल जिहड़ा उदों दिता सीगा। अच्छा वो तो गए मुल्तान, वो तो किरपा करके दिती सी ना, नेत्रां चों बख्शिश कीती सी। जल तो एक बहाना है, हुंदी तो किरपा है। ते वो किरपा तो चली गई, हुण वार वार नहीं मिलिया करदी। इस करके भगत रविदास जी एक बहुत वड्डे भगत होए। इन्हां कोले बहुत सारे साधु भी आउण लगे। घर विच बड़ी गरीबी सी, परमेश्वर ने किरपा की, कोशिश की कि इहनूं मैं अमीर बना दियां। तो जदों इन्हां ने जाके कहते झाड़ू मारना, तो रोजाना जदों अड्डा चक के कपड़े कुपड़े चक के झाड़ के विछाने, थल्लिओ कदे 5 रुपये निकल आने, इन्हां ने चक के कूड़े विच ही सिट आने। को सतनाम सी। परमेश्वर ने वेख्या यार मैं सोचदा यह अमीर हो जे, मर जा, पैसे वाला हो जे, मेरा भगत है फिर भी, पर यह चक के बाहर सिटे आउंदा। एक दिन परमेश्वर ने सलाह की भी यार सीधा ही जाके देखे आवां इहनूं, ये इदां लैंदा नहीं गा। साध बन के आ गया, बह गया, गल्लां बातां करदा रहा रब दियां। जांदा जांदा कहन लग्या भगत जी एक पत्थरी है मेरे कोले। अच्छा ये की आ? ये पारस की बट्टी आ, जिन्हों आए लोहे नाल ला दिए ना तो आ देख सोना बन जाता। कहते ठीक है महाराज। कहते मैं इत्थे रख के जाना, मुड़दा होए ले लूँगा, मैं चलिया यात्रा ते। कहते कोई नहीं, टंग दे उत्थे आ कखा कानियां दियां झोंपड़ियां हुंदियां सी उदों। कहते झोंपड़ी टंग दो साइड ते। उत्थे टंगती, वाहवा चिर ना आया लैण वास्ते। वाहवा चिर बाद आउंदा है भी चल हुण तां उहने काम सार लिया, हुण चक के गाडर गुडर सिउणे दे बना लए होणगे वड्डे वड्डे। आया ते वेखदे भगत जी उत्थे ही बैठे आ। को सतनाम श्री। कहने भगत जी तुहानूं पत्थरी दे गए सीगे। कहने हाँ महाराज वेख लो जिथे रखी है उत्थे किते पई होनी आ। को सतनाम श्री। ਜਾਂ ਨਿਗਾਹ मारी तो पत्थरी उत्थे खुंजे टंगी पई। कहने भाई तुसीं वरती नहीं ये? कहने लोड़ ही नहीं पई कोई सानूं। को सतनाम श्री। क्योंकि परमेश्वर की भगती विच ही भगत इन्ने लीन हो जाते हैं तो इस माया वाले पासे चलते ही नहीं। वो तो भगत जी के प्रथाए ये भी भाई साहब भाई गुरदास जी के शब्द चों आपां पढ़िया शब्द, नावण आया संग मिल बनारस कर गंगा ठेटा। गंगा के उत्ते एक बारी संग हुंदा हैगा साधुआं दा टोला, साधुआं दा जथा। वो गंगा ते नहाउण चले आ ते जांदे जांदे भगत रविदास जी कोल खड़ गए।
कहते भगत जी आओ गंगा का इशनान करा लियाइए। कहन लगे नहीं महाराज इत्थे ठीक आ, काम कुम करते हैं, बच्चे पालने आ, दुकान ते लोट आ, इत्थे भगती कर लईदी है। हाँ ऐदां करियो, आ 1 रुपया लै जाओ, उहनूं कसीरा कहने सी उदों, कसीरे दे विच ये आना कह दिओ या रुपया कह दिओ, पैसा फड़ा दिता एक मतलब। ते कहन लगे आ लै जाओ कसीरा मेरे वल्लों, ते ये लिजा के गंगा नूं भेंट कर दिओ, मेरे वल्लों बेनती कर दिओ, पर बेनती करियो भी बांह कढ के फड़ ले, ऐवें चला के ना मारिओ पानी च। कहो सतनाम सी, कह दिओ भी फड़ लो जी भगत जी दी भेंट आ। कहंदे ओ लै गए फड़ के, नहा धो के इशनान किया। जदों इशनान करन तो बाद याद आया भी यार वो भगत जी ने भेटा फड़ाई सी, जिवें आपां कहने यार हजूर साहब चलिया मेरी अरदास भी करा दी उत्थे। कहो सतनाम श्री। कहंदे भगत जी का कसीरा भी दिओ। कहंदे उन्होंने कढ़िया, पहला तो हसे भी यार गंगा ने पहला तो किसी का फड़िया नहीं गा, दस ये फड़ लूगी, दिमाग च हसे, मन च हसे। पर फिर जिवें भगत जी ने कहा सी उवें इन्होंने कह दिता, ये माता जी आ तुहाडे भगत का 1 रुपया 1 कसीरा आया भी फड़ लो भेंट। कहंदे हैरान हो गए। कहंदे उस गंगा दे विचों एक हथ बाहर निकलिया, जिस दे हथ विच बेअंत चूड़े पाए हुए आ, ते हथ बाहर निकलिया ते कसीरा फड़ लिया। ओह हथ वापस चलिया गया ते फिर बाहर निकलिया। आवाज़ आई आ भगत नूं सरोपा दे दिओ मेरे वजों। को सतनाम सी। एक कड़ा एक सोने का चूड़ा उस हथ ने वो फड़ा दिता, इन्हां ने फड़ लिया, वापस चल पे। रस्ते विच कहंदे मन च बेईमानी हो गई भी भगत नूं किहड़ा पता लगना यार, आपां शक छका लैने आ। दुकान ते बेचण चले गए सुनियारां दे, सराफां दे। सराफां नूं कहंदे भी यार आ एक साडे कोले चूड़ा सानूं कितों मिलिया हैगा ते तूं सानूं इहदे पैसे दे दे। उस सराफ ने सोचा, सुनियार ने सोचा भी यार भनन वाली चीज़ तो है नहीं, एडी सोहनी आ, क्यों ना किसी नूं इस तरह बनी बनाई दे दें, पर इन्ना महंगा लऊ कौन, राजे नूं कह दिंदे आ। ते राजे नूं सद्दिया। कहंदे राजा साहब एक बड़ा कीमती चूड़ा मेरे कोल आया, मैं भनन दा जी नहीं करदा गा, तुहाडी राणी दे बड़ा जचूगा जे तुसीं लै लो। राजा ते राणी दोने आ गए। कहंदे लियाओ दिखाओ। राणी ने फड़िया तो कड़ा फड़ के बांह च पाया, तो बहुत सोहना लगता है। कहने भाई इको ही है कि 2 है? सुनियार कहना भी इको ही है। भाई होर हैगा साधा नूं? कहंदे ना जी होर तो है नहीं। राणी कहंदी जे 2 होंदे तो बड़े जचदे। कहो सतनाम श्री। साधा नूं पुछे भी लिआंदा कित्थों है, फिर फस गए वो भी हुण दस्सण कित्थों लैके आंदा है। जब फस गए राजे ने पूछा दबका मार के भी दसो कित्थों लिआंदा है। पहला तो उन्होंने रिच पिच की, पर फिर दसना पिया भी ये साडा नहीं हैगा, असीं तां चोर बन गए। ये तो आ सारी कहानी हुई सी। हाँ इहो जिहा चूड़ा रविदास भावें दवा देवे, साथों नहीं दवाया जाना है। कहो सतनाम श्री। फिर वो सारे इकट्ठे होकर भगत जी दे कोल आए। पहला जाके उन्होंने माफ़ी मंगी भी राजा साधु ने भी भगत जी गल आ हो गई, वाकया ही सोडा कसीरा माता ने प्रवान कर लिया। कहते देवी ने फड़ लिया, पर उन्हें आ चूड़ा दिता सीगा, असी हो गए बेईमान, असी बेचन लगे सीगे। ते सुनियारे ने गां राजे नूं सद लिया। राणी कहंदी मैनू 2 चाहिए आ। राजा अपना उन्हां साधुआं दी गल ते कहंदे भगत जी ने कोई गुस्सा नहीं किया। और भगत जी कहंदे ऐदां करो भाई, ਇਹ कठौती विच भाव उस कुंडी दे विच हथ मार के देखो, जिहो जिहा चाहिदा कढ दो। को सतनाम सी। जो मन चंगा तो कठौती विच गंगा। ये भी कहंदे आ कि उन्होंने पत्थर चक्किया ते पत्थर दे हेठां वगदा होया पानी दिखाई दिता। कहंदे आ गंगा तो साडे कोल ही रहिंदी आ। को सतनाम सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हथ मारिया तो हथ ਵਿੱਚ कहते 5-7 चूड़े आ गए। हैरान हो गए भी यार है इन्ने कीमती समान वाला बंदा ऐदा
ਜੋੜੇ ਕੰਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤ ਆਪਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदो नहीं ते ठाओ, ना तस्वीर खिराज ना माल ना खौफ ना खता ना तरस जवाल। वो तो इहो जी अवस्था च रहिंदे है जिस वेले वो कड़ा होर निकलिया चूड़ा उहदे विचों ते गुरु प्यारे कई निकले, राजा राणी सारे भगत जी दे पैरी पै गए। भगत जी कहने भी जो उहदे नाल दा इक रख लो, बाकी विच ही सिट दिओ। पत्थर उत्ते ही रख दिता। कई कहते हैं कुंडी दे विचों हथ मार के कढ़ दिते। ये भगतां दी किरपा दृष्टि दे विच ही सब कुछ हुंदा है। इहो जिहियां साखियां भगत नामदेव जी दियां भी है। और उन्हां ने एक शब्द उचारिया, जो गुरदेव तां सहज निकसाई। उन्हां ने एक नदी दे विचों पलंगे कढ़ते सोने दे बहुत सारे, फिर मुड़ के सारे विच ही रखवा दिते। खैर भगत रविदास जी का प्रकाश दिहाड़ा आपां सारे मना रहे हैं। अखीर वो राजा जिहड़ा भगत जी दे सेवक बन गए, राजा राणी, ते इन्हां ने भगत जी नूं अपने घर न्योंदा दिता भी आपां लंगर चलावांगे एक बहुत वड्डा, जिहदे विच इलाके दे ब्राह्मण भी सद्दे और भगत जी नूं खास करके सद्दा दिता गया। जदों भगत जी गए, जिवें उस रीत चलदी सीगी बई नीच नूं परे बिठाओ, ये नीच आ विच नहीं बिठाउणा, आ तां सतगुर ने सानूं इकट्ठे कीता। जदों गुरु प्यारिओ ब्राह्मणां दी लैन विच ही आके भगत रविदास जी भी बैठ गए ना, ब्राह्मणां ने रौला चकता, कहंदे शूद्र नीच, हाय हाय ये जी असीं भोजन खांदे खराब हो गया, है तां असीं नहीं खाना। कहंदे गल की होगी? राजा कहंदा वो कहंदी आ रविदास नूं विच क्यों बिठाया, इहनूं उठाओ इत्थों, असीं नहीं खाना गे इहदे नाल प्रशादा। भगत जी उठ खड़े होए, कहंदे राजा साहब मैं बह जाना पासे, कोई गल नहीं, इन्हां नूं खा लैण दिओ। पहला भगत जी अंदर जाके बैठ गए। हुण की होया, जदों वो सारे प्रशादा छकण लगे ना, राजे दे कोल बैठे पंडित सारे पंगत विच सारियां ने रौला पाता। पता की उत्थे कला वरती? फिर वो सारे कहंदे रविदास मेरे कौली चों बुरकी लाई जांदा है। एक इधर पंडित बैठा है, पंडित दे नाल रविदास बैठा है, दूजा कहना मेरे नाल बैठा है। सैकड़े ब्राह्मण सी, सारे कहते साडे नाल रविदास बैठा, साडे नाल रोटी खांदे नूं परे ठाओ। और राजा कहते तुहाडी मत मारी गई है, रविदास अंदर बैठा है, जिहड़ा असली रविदास है, ये तुहाडी आत्मा ही रविदास बन के तुहानूं दिखाई दे रही है। दिमाग ते कढो, घट घट मैं हर जू वसै, संतन कहो पुकार। तो फिर उत्थे भगत रविदास जी की बड़ी महिमा हुई, उन्हां सब नूं ज्ञान दिता। फिर सब ने ये बेनती की जी रविदास नूं विचे बिठा लो, घट्टो घट साडा भरम तां निकल जावे कि रविदास साडे थाल चों रोटी खा रहा, को सतनाम श्री। तो खैर बेअंत कहानियां इन्हां भगतां दीआं जिन्हां ने उन्हां समयां च भगती कीती। भाई साहब जी लिखदे हन, नावण आया संग मिल बनारस कर गंगा बेटा, कढ़ कसीरा सौंपिया रविदासे गंगा दी भेटा, लग्गा पुरब अभीच दा। भाव कोई समागम सी, उदों कोई मेला सी गंगा ते, उस वेले कहानी वरती सी, डिठा चलत अचरज अमेटा। ये अचरज उत्थे होया, हैरान करन वाली गल वरती। लिया कसीरा हथ कढ़, सूत एक जो ताना पेटा। परमेश्वर ते परमेश्वर दे प्यारिਆਂ 'ਚ कोई फर्क नहीं हुंदा, जिवें मंजे दा ताना पेटा दोने पासे इक्को ही सूत आ। भगतां विच भी वो वसदा है, आपदे विच भी वो वसदा है। भगती प्रभ जी बसे साध की रसना, भगत जना हर माँ प्यो बेटा। इउं भगत अते परमेश्वर दे जिहड़ा है इन्हां दा ऐसा रिश्ता है, जिवें मापिਆਂ ਨੂੰ पुत्र प्यारे, भगत प्यारे रब ਨੂੰ। हर जुग जुग भगत पाया, पैज रखदा आया राम राजे। हरनाकश दुष्टर मारिया, प्रहलाद तराया। अहंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम देव मुख लाया। जन नानक ऐसा सेविया, अंत ले छड़ाया। सो बहुत बहुत धन्यवाद सरबत संगतां नूं। भगत रविदास जी के प्रकाश दिहाड़े की लख लख वधाई होवे। विचारा इत्थे रोकदे हां। इउं भगतां ने उस समय भगती की लहर चलाई, तो फिर उस तो बाद अगे चल के धन गुरु नानक देव जी महाराज आए। उन्होंने होर भी इस लहर नूं वड्डे पद्धर ते चलाया ते दुनिया नूं एक कीता। जिथे ब्राह्मणां ने उस वेले दे मौके दे धर्म दे पखंडियां ने संसार नूं 4 हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, उत्थे गुरु नानक दे मार्ग ने 10 गुरुआं ने
ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਝਲਕਾਂ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਪਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।